Hello my dear students, to yet another session. In this session we will be doing questions based on advanced of 3D geometry. So let's get started with the questions. Question number 1 is, now a very interesting question recently asked. Consider a pyramid OPQRS located in the first octant with O as origin, OP, OR are along the x-axis and the y-axis. Now this is x-axis, this is OP and that's OR. Alright. The base OPQR is a square. ये जो base है pyramid का वो square है. This is Q. OP और OR x-axis और y-axis के along है. The base is a square with OP as 3. That means all are 3 units. So let's write the coordinates of all of them. This would be, इसके क्या coordinates हो जाएंगे? x3 है 3 0 0. इसके coordinates क्या हो जाएंगे? 3 3 0 और इसके coordinates हो जाएंगे 0 3 0. ठीक है. Now the point S is directly above the midpoint T of the diagonal OQ. Diagonal OQ is this. The midpoint T would be this. इसके coordinates midpoint के क्या हो जाएंगे? इसका midpoint निकालते हैं 3/2 0. Now there is this point T which is directly above the midpoint T of the diagonal OQ such that TS is 3 units. TS यहाँ एक point S है, ठीक है, और ये लेंथ कितनी है 3 यूनिट्स. तो इसके और बिल्कुल डायरेक्ट इसके क्या है डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट, इसके डायरेक्टली ऊपर. तो अगर इसके ऊपर है तो ये कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ लेंथ और बढ़ जाएगी. तो z कोऑर्डिनेट्स हमने बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा 3/2 3. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S. अगर आपके पास ये बेस है, बेस पे स्क्वायर है और उसने बोला मिड पॉइंट के डायरेक्टली ऊपर है, तो ऊपर मतलब ये वाली चीज और ऐड हो जाएगी. तो 3/2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S. Then now let's discuss the options. ये तो जो हमें दिया था हमने वो लिख लिया, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए. Acute angle between OQ and OS. OQ and OS is π/3. तो निकालते हैं OQ और OS के बीच का एंगल. OQ देखो कितना बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 3 3 0. OQ वेक्टर इज 3 3 0. OS would be same as that. तो इनके बीच का एंगल निकालना है. cos थीटा इज इक्वल्स टू 9/2 plus 9/2 upon under root of 9/4 plus 9/4 plus 9 under root of 9 plus 9. So let's just solve it. तो ये कितना हो जाएगा, simply 9. ये हो जाएगा under root of 18. This is under root of 18 और इसको solve कर लेते हैं. This would be 9 plus 9 और 9 into 4 is how much? 36 plus 45 plus 54/4. 54/4 है under root तो 2 हो जाएगा. तो this would be 18 under root 18 would be under root 18 upon under root 54. This would be 18 3s are 54 1/√3. So इसका मतलब angle between OQ and OS is cos inverse of 1/√3. So which is, this is incorrect option. यहाँ तो π/3 लिखा हुआ है. Next देखते हैं equation of the plane containing OQS. O, Q and S. हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो OQS को कंटेन करते हैं. अब OQS आर 3 पॉइंट्स बेसिकली. तो इन 3 पॉइंट्स को कंटेन करने वाली प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एक तो पॉइंट 0 0 से वो कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब देयर विल बी नो D. दूसरी बात है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए OQ और OS का क्या ले लेते हैं हम, क्रॉस. तो लेट्स टेक द क्रॉस. I J K 3 3 0 3/2 3/2 3. I 9 minus J 9 plus K. This would be 9/2 minus 9/2 0. So it is I minus J. So the direction ratios of the normal are 1, -1. So 1, -1 मतलब x minus y is equals to 0 क्योंकि origin से पास कर रहा है. So this option is completely correct. ठीक है. Length of the perpendicular from P to triangle OQS. Now length of perpendicular from P से अगर हम perpendicular ड्रॉ करें OQS पे, OQS से अगर मैं P जो एंगल OQS है वो एक प्लेन पे लाई कर रहा है और लेंथ ऑफ द perpendicular, तो perpendicular डिस्टेंस ऑफ, समझने वाली बात है दैट ट्राइंगल OQS इज इन द प्लेन. सो ट्राइंगल OQS जो है सिंस इट इज इन द प्लेन, उसका डिस्टेंस P से निकालूं या प्लेन का डिस्टेंस P से निकालूं, बात एक ही है, perpendicular डिस्टेंस निकालना है. सो P क्या पॉइंट है 3 0 0. तो 3 0 0 का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं, क्या आ जाएगा 3 upon under root of 1 plus 1.
that would be 3 root 2. So is it correct? 3 root 2. Yes, this is also absolutely correct. Option number D, the perpendicular distance from O to straight line containing RS is root 15 by 2. स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग आर एस, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आर और एस से. तो let's make a straight line. Let's find out the equation of the straight line having R and S. So let's make, so x y minus 3 z, all right, S is 3 by 2, डायरेक्शन इसके यहाँ पे लिख देते 3 by 2 minus 3 would be minus 3 by 2 and z would be 3, राइट. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 minus 1 2, 1 minus 1 and 2 are the direction ratios of this line. So अब हमें क्या चाहिए, क्या पूछ रहा है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस स्ट्रेट लाइन इज रूट 15 by 2. इस पे कोई पॉइंट लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 एंड जस्ट 2 लैम्डा. नाउ देयर इज दिस लाइन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है आपको, ठीक है. तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज दिस, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन इज दिस, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. अगर इनका, जब आप इनका डॉट निकालोगे वे 0 आ जाएगा, तो निकालते हैं डॉट, कितना बन जाएगा लैम्डा. और आपको क्या बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस स्ट्रेट लाइन. वी वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, व्हाट दिस डिस्टेंस इज. तो पहले ये पॉइंट निकाल लो, फिर डिस्टेंस निकाल लेना. तो क्या करेंगे, लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट 0. तो कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ. नाउ सिंस लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ, दिस पॉइंट वुड बी, let's suppose this point is say t, so this point would be half, 3 minus half is 5 by 2 and 1, so half 5 by 2 and 1. अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल लेते हैं, ठीक है. सो ओरिजिन से डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 1 by 4 प्लस 25 by 4 प्लस 1, which is nothing but 26 by 4 plus 4, 30 by 4, which is nothing but root 15 by 2. Hence the distance of this point is from the origin is root 15 by 2, which is completely correct. So all the options are correct except for option A. So it was just a geometrical based question. आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है. उस बिसाइड्स द फैक्ट कि आप वो पिरामिड वाली बात सोच के डर ना जाओ. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. All right. The point P is the intersection of the straight. The point P is the intersection of the straight line joining the point Q and R with the plane. एक plane है, इसकी इक्वेशन है 5x minus 4y minus z is equals to 1. Point P is intersection. ये point P है जो कि intersection of straight line. This is joining Q 2 3 5. And this is R 1 minus 1 4, okay, and this is point, say this point is given to be P, okay, and if P is the intersection of the straight line joining the points Q and R with the plane, if S is the foot of perpendicular drawn from the point T 214. अब आप देखो T से 214, T क्या यहाँ पे लाई कर रहा है, 10 minus 4 minus 4 नहीं लाई कर रहा, तो T is somewhere outside. तो वो बोल रहा है S is the foot of perpendicular drawn from point T to QR. T कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ पे, उससे आपने foot of perpendicular ड्रॉप किया यहाँ पे. Let's say this is P and this is S. Okay. Now T है 214. Okay, and this is P. And what are the coordinates of P? We don't know. We have to find out. So this is P and this is S. So this is the foot of perpendicular drawn from to QR. Length of the line segment PS is. आपको ये निकालना है. Now
अगर आपको S मिल जाए और P मिल जाए, योर जॉब इज डन सिंपली. सो व्हाट इज P? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट P. P कैसे निकालेंगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन. सो let's find out this equation of the line is x minus 2 y minus 3 z minus 4. All right, so x minus 2 y minus 3 and so z minus 4. अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालते हैं. x minus 2 y अब हम निकालेंगे इसका इक्वेशन. तो लेट्स सब्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू हैव ओवर हियर? 1 minus 2 would be minus 1, minus 1 minus 3 would be minus 4 and 4 minus 4 is 0. So subtract करेंगे. 1 minus 2 is minus 1, minus 1 minus 3 is minus 4 and 4 minus 4 is 0. तो ये आ जाएगी हमारे पास equation of the line. Now let us find out the point of intersection. One second, this is not 4, this is 5. I'm sorry. अब हमें दोबारा करना पड़ेगा. x minus 2 y minus 3 z minus 5. Okay. अब हम लोगों को डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं. तो 1 minus 2 is minus 1, minus 1 minus 3 is minus 4 and 4 minus 5 is minus 1. All right, is equal to lambda. Now so therefore I have minus lambda plus 2 minus 4 lambda plus 3 and minus lambda plus 5. Okay, this is any general point. अब ये पॉइंट प्लेन पे कब लाई करेगा? जब इस सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को. तो सेटिस्फाई कराओ, कितना आ जाएगा? 5 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 2 minus 4 into minus 4 lambda plus 3 and plus lambda minus 5 is equals to 1. Let's solve. Minus 5 lambda plus 10 plus 16 lambda minus 12 plus lambda minus 5 is equals to what? 1. अब ऐड करते हैं. 16 plus lambda 17 minus 5 is 12 lambda and this is 10 minus 17 is minus 7 और यहाँ आ जाएगा 8. lambda is equals to what? 2/3. अब lambda की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? minus 2/3 plus 2 minus 4 into 2/3 plus 3 and minus 2/3 plus 5. So let's evaluate. 3 2s are 6 minus 2 4/3 minus 8/3 plus 3 and this is 15 minus 2 कितना हो जाएगा? 13/3 और ये कितना आ जाएगा? 4/3 3 3 9 1/3 and 13/3. This is the required point. कौन सा क्या पॉइंट है ये वाला फिर P का? 4/3 1/3. अब हमारे पास P पॉइंट तो आ गया. What I further need is S. अब मैंने एक बार S निकाले तो मेरा काम खत्म है ना. तो S कैसे निकालेंगे? S क्या है? S is a foot of perpendicular from T onto this line QR. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं T से कोई ड्रॉप कर रही हूँ परपेंडिकुलर और ये मेरे को व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QR? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QR वुड बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QR हमने अभी निकाले थे, क्या है? 1 4 1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QR, क्योंकि मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी है ना. ठीक है, सो 1 4 1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द QR. अब मुझे ये पता है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज 1 4 1 है और मैं T से कोई भी लाइन ड्रॉप करती हूँ, ट्री से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो उसका और इसका क्या आ जाएगा? what will I have? that the dot product would be equal to what? 0. now this is the point over here on this line. ये S point भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो any general point का इसके साथ डॉट लेंगे तो वो 0 आना चाहिए. so let us take कोई भी जनरल पॉइंट लेते हैं यहाँ पे. ये जनरल पॉइंट हमने लिया भी था यहाँ पे. क्या क्या जनरल पॉइंट लिया था? ये वाला जनरल पॉइंट लिया था मैंने. अब ये जो जनरल पॉइंट है ये S तब बनेगा अगर TS will be perpendicular to this. that means the dot of TS and this would be equal to 0. तो TS के क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज? लेट अस मेक द डायरेक्शन रेशियो. माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा और माइनस 4 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करो 3 माइनस 1 दैट वुड बी माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 और माइनस लैम्डा प्लस 5 माइनस 4 दैट वुड बी माइनस लैम्डा प्लस 1. सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 2 1 4. माइनस लैम्डा आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा. अब इसका डॉट
अगर मैं इनके डायरेक्शन रेशियो लूंगी वो 0 आना चाहिए, so that will give me a particular value of lambda which would be my s, because s is lying on this line. So इसका डॉट लो, किसके साथ लेंगे डॉट? with the direction ratios of pq and that are excuse me excuse me please, that are 1 for 1. So let's take the dot. That would be minus lambda minus 16 lambda plus 8 minus lambda plus 1. This is minus lambda, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, minus 16 lambda plus 8 minus lambda plus 1. This should be equal to what? 0. So from here I get what? This is minus 17 or minus 18 lambda is equals to minus 9. So lambda is equals to what? Half. तो lambda को half put करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा minus half. Minus 4 into half would be minus 2 plus 2. Minus 4 into half would be minus 2 plus 2. And यहाँ पे half put करेंगे, 1 minus half is half. So it's minus half, 0, half. So this point S is minus half, 0, half. Now that you have this point, you have this, you can easily find out the distance and find out what your PS is. So that's it with this question. There is another way of doing is with this in the form of angle. देखो, एक तो ये मेथड हो गया, आप सिंपल डिस्टेंस निकाल सकते हो. एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ, क्या कि आपके पास PT है, PT यू नो, P के कोऑर्डिनेट्स पता है आपके पास, C के कोऑर्डिनेट, आपके पास P और PQ और Q के भी पता है आपको डायरेक्शन रेशियोज, आपके पास PT के भी डायरेक्शन रेशियोज है. यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल, you can find out this angle theta. After that, you with the help of trigonometry, you can find out this length because this is the right angle triangle. Yes or no? You have this P, you have this T, you have this angle. You can easily find out what? Any of the length using trigonometry. Alright? अगर आप इसको evaluate करेंगे, this angle would come out to be 45 degree. This is 90, so this would be 45. इसका मतलब क्या हो गया? That this length is equal to this length. तो आराम से आप निकाल सकते हो by using what? Trigonometry. Alright, so these are the two ways of doing the same question. Let's move further. Question number 3. If the straight line these and these are coplanar then the plane containing these two lines. Plane containing two lines हमने बहुत बार निकाला है, हमें पहले K निकालना है क्योंकि वो coplanarity की condition को evaluate करेंगे. So let us apply the condition of coplanarity of two lines. वो क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए 2K2 5 2K and subtract the points. This is 1 minus of minus 1, that would be 2. Then you have minus 1 minus of minus 1, that would be 0. And then you have 0. So हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू कोप्लानरिटी की कंडीशन क्या है? 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. सो के इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो के की वैल्यू या प्लस 2 है या माइनस 2 है. सो फॉर के इक्वल टू 2 आई विल हैव इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स. तो इसका मतलब पहले आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे, वो क्या हो जाएंगे? 2 2 2, इसको के की वैल्यू 2 रख दिया हमने, 5 2 2. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल निकालते हैं. आई वुड बी 4 minus 4, that is 0. Minus j would be 4 minus, that would be 4 minus 10. Plus k would be 4 minus 10 again. This would be 4 minus 10 and that would be 4 minus 10 again. Right? तो क्या आ जाएगा? This would be 6j minus 6k. तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गए 1, -1 ऑफ द नॉर्मल. और एक पॉइंट कोई भी ले लो यहाँ से, you can take any point. let's take 1 minus 1 0. तो आपको करना है plane containing these two lines. so 1 minus 1 0 से पास करने वाली लाइंस देखते हैं क्या आ जाएगी. so that would be 1 into x minus 1 and minus 1 into y plus 1. आगे तो 0 है तो क्या बन जाएगा? x minus 1 minus y minus 1 is equals to 0. that means x minus y is equals to 2. so देखिए x minus y equal to 2 है, x minus y is equals to 2 we don't find anywhere. oh sorry, this is 6z minus k. this would be, I'm sorry for this, ये पॉइंट है 0 1 minus 1. मैंने गलती से वहाँ x लिख दिया था. so 0 1 minus 1 है. अब हम इसको लिखते हैं, x का तो आएगा ही नहीं तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू वाई प्लस 1 एंड माइनस 1 इंटू जेड. तो हम देखते हैं क्या बनेगा. y plus 1 minus z is equals to 0, that is y minus z is equals to minus 1 या y minus z plus 1, y minus z is equals to minus 1. एक तो ऑप्शन आ गई ये,
जब मैंने k को 2 लिया। सिमिलरली मैं k को यहाँ पे लूंगी -2, तो क्या चेंज हो जाएगा देखते हैं। व्हेन आई टेक k टू बी -2 ओवर हियर, यहाँ -2 ले लो और यहाँ -2 ले लो, तब देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे। सो I वुड बी -4 अगेन, नहीं I वुड बी, दिस वुड बी 4 -4 अगेन 0, -j वुड बी -4 and -10, k would be 4 and +10. All right, so it would be now, this would be now 14j plus 14k, that means 0, 1, 1. तो अगेन कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और 0, 1, 1 से बनाते हैं, क्या आ जाएगा, y plus 1, 1 plus z is equals to 0, that means y plus z is equals to -1. तो ये भी है क्या, y plus z equal to -1, ये भी है. So the two options, two planes containing these two lines, coplanar lines, is this as well as this. Moving further to the next question, question number 4. Now this is a very interesting question again. L1, L2 be the line of L1, L2, L3 be the line of intersection of the plane P2, P3, P3, P1 and P1, P2 respectively. Okay? आपको ये दिया हुआ है कि L1, L2, L3 be the line of intersection of the planes P2, P3, P3, P1 and P1. So at least two of the lines are L3, L1, L2 are non-parallel. The three planes do not have a common point. ठीक है? अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, दो प्लेन्स हैं आपके पास, ठीक है, ये तीन प्लेन्स हैं आपके पास. अब इन प्लेन्स का हमें सॉल्यूशन निकालना है कि ये प्लेन्स कैसे होंगे. नो, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. एक तो ये देखो, प्लेन्स पैरेलल तो है नहीं, तो पैरेलल का तो कंडीशन खत्म ही हो गई. एक तो ये हो सकता है कि ये प्लेन की कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये तीनों प्लेन इनकी एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो. बट हमें तो दिया हुआ है कि L1, L2, L3 अलग अलग लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस दी हुई हैं. ऑब्वियसली प्लेन्स अलग है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दिस इज नॉट द सिनारियो कि ऐसा होगा. ये हो सकता है कि, और ये भी नहीं है कि यूनिक पॉइंट पे मिले क्योंकि उन्होंने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देके भेजी है. ये हो गया ऐसे ऐसे, और एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अलग भी दी हुई है, इस तरीके का भी कुछ बन सकता है. तो क्या बनेगा, सिचुएशन क्या बनेगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है. अब अगर आप इसको देखो ध्यान से, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें डिटर्मिनेंट 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -3, 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 3 -3 ये 0 हो गया, +1 3, दिस वुड बी +1 किया हमने यहाँ पे 3, एंड देन यू हैव माइनस +1, देन यू हैव 1, अगेन यू हैव -3 एंड -1. सो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, दिस वुड बी 4 -4 0. तो जब भी डेल्टा 0 आ जाता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होएगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा. अब क्या होगा दोनों में से, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता, तो नो सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ये कैसे पता लगाएं, इसका पता लगाने का एक तरीका होता है कि इफ यू हैव अगर ऐसा बन गया P1 plus lambda P2 is equals to P3, इसका मतलब P3 is a plane which is passing through the line of intersection of two given planes. तो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेम ही हो जाएगी. P3, what is the meaning of P3 can be written as P1 plus lambda times P2, a plane passing through the line of intersection of two given planes. मतलब ये दो प्लेन्स है, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास कर रहा है. अगर तो ऐसा हो गया, और ये जरूरी नहीं है कि P1 P2 के लिए हो, ये किसी के लिए भी हो सकता है, P2 P3 के लिए ऐसा हो जाए, कोई दो के लिए ये चीज बन जाए, या फिर P2 एंड P3 हो गया, P1 एंड P2 हो गया, और क्या रह गया, P1 एंड P2, P2 एंड P3, P2 एंड P1 एंड P3. तो किसी दो के लिए ये चीज पॉसिबल हो जाए तो दैट मीन्स दे विल हैव कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. लेकिन अगर ऐसा ना होकर कांस्टेंट अलग आ रहा है,
P1 प्लस लैम्डा P2 में ये वाली साइड तो सेम बन रही है, लेकिन ये आप याद कर लो एक तरीके से रिजल्ट, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब अगर आप देखो, हम एक चीज बनाने की कोशिश करते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2, अगर मैं P1 में 2P2 बनाती हूं तो देखिए क्या P3 बनता है, तो फिर तो हमारे पास बात बन जाएगी, तो फिर हम अपने असर्शन रीजन कर सकेंगे। P1 प्लस 2P2 तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, और 2P2 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब इनको ऐड करो, कितना बन जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू कितना बन गया, सबट्रैक्ट करो, लैम्डा कैन बी -1 ऑल्सो, सबट्रैक्ट करो, माइनस 2P2 करो, क्योंकि वो नहीं बन रहा था हमारा, सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करने पे क्या होगा, x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली ये बन जाएगा x, अब आप जरा ध्यान से देखो, जब मैंने इसको सबट्रैक्ट किया x माइनस वाई प्लस जेड को और x प्लस वाई माइनस जेड को 2 से मल्टीप्लाई करके, सो सबट्रैक्ट करने पे मिल गया माइनस एक्स, यहां सबट्रैक्ट किया हमने, क्या मिल गया, माइनस 3y, ओवर हियर आएगा 3z। अब आप ध्यान से देखो कि क्या ये सेम बन रहा है, सेम तो नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना चाहिए था, अगर मैं इसमें से 2 मल्टीप्लाई करूंगी क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 2z था, और अब मैं इसको ऐड कर रही हूं, सबट्रैक्ट कर रही हूं, तो क्या बन रहा है, ऐसे करो, 2x प्लस 2y माइनस 2z में सबट्रैक्ट करो x माइनस वाई प्लस z को सबट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे को वैसा नहीं चाहिए, प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 3y, और ये कितना बन जाएगा, माइनस 3z। तो जब आप ऐसा करके देख रहे हो, वेन एवर यू आर ट्राइंग दिस, तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाएगा जिसमें यू विल हैव P1 प्लस लैम्डा P2, एग्जैक्टली P3 नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट डिफर करेगा। तो जब कांस्टेंट डिफर करता है तो हमारे पास 3 प्लेन्स के साथ क्या बन जाता है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये सिचुएशन बन जाती है, दिस गेट्स फॉर्म, प्लेन ऐसे 3 उसमें लग जाते हैं, जैसे कि एक प्लेन ये है, इफ यू कैन सी दिस, 2 ऐसे झोंपड़ी टाइप की चीज बन जाएगी, नीचे भी एक प्लेन, यू हैव अ झोंपड़ी काइंड ऑफ अ थिंग विच विल बी फॉर्म्ड, अ हार्ट टाइप ऑफ अ थिंग। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, देखो इस केस में आपके पास, अब हम असर्शन रीजन देखते हैं, हमारे पास आएगा एटलीस्ट 2 ऑफ द लाइंस L1 L2 L3 आर नॉन पैरेलल, ये L1 है मान लो, ये L2 है, ये L3 है। अगर आपके पास, इफ यू कैन सी, अगर आप ध्यान से देखो, ये है, ये लाइन है L1, इधर आएगी L2, इधर आएगी L3, तो 2 तो लाइंस पैरेलल ही आ रही है, तो ऊपर वाली जो लाइन है वो तो किसी के पैरेलल नहीं है, तो पहली बात बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑफ द लाइंस L1 L2 L3 आर नॉन पैरेलल, कम से कम 2 नॉन पैरेलल आएंगी, बिल्कुल बात ठीक है। तीसरी है, द 3 प्लेन्स डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, ये भी बात ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहे हैं तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, द 3 प्लेन्स डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट बिकॉज दे आर मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, आई कैन नॉट सी द कॉमन पॉइंट बिटवीन ऑफ देम। अब आपकी बुक में देयर आर n नंबर ऑफ वेज इन विच दे विल बी सॉल्विंग इट। पहले तो मैं आपको वो प्रिज्म वाला केस बना के दिखा दूं, पहले हम एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। सो आई विल हैव x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2, लेट्स सबट्रैक्ट, सो सबट्रैक्ट करो, यह आ जाएगा माइनस x, दिस वुड बी माइनस y, दिस वुड बी z इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये हमें मिला, हाँ। अब देखो, जब मैंने इसमें से P3 माइनस 2P1 किया तो क्या हुआ, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब P2 और इसमें क्या फर्क है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू -1। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द 2 ऑफ देम डिफर बाय अ कांस्टेंट ओनली। सो व्हेनेवर यू सी, जब आपने ऐसा किया कि P3 प्लस लैम्डा P2 या एनी P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू द अदर प्लेन, लेकिन कांस्टेंट सेम नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में यू विल ऑलवेज हैव अ ट्रायंगुलर प्रिज्म दैट विल बी फॉर्म्ड। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे, अगर कांस्टेंट भी सेम आ रहा है तो हमारे पास सिंपल हो गया, P3 is P1, some plane is this plus this, that means it is passing through the line of intersection of 2 given planes। ये तो हमें पता ही है फैमिली ऑफ प्लेन से, लेकिन अगर बाकी सब कुछ सेम है, कांस्टेंट डिफर कर रहा है, देन यू विल हैव अ ट्रायंगुलर प्रिज्म दैट इज फॉर्म्ड, और उसके बाद असर्शन रीजन कोई मुश्किल बात ही नहीं है। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। अब कई बच्चे इसको और अलग अलग तरीके से करेंगे कि इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे,
फिर वो देखेंगे पैरेलल तो नहीं बन रही, फिर उसका कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे. सो यू विल फाइंड आउट, इट्स वेरी वेरी लेंथी. दिस इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, सो यू कैन इजिली सॉल्व इट बाय दिस. सो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Fifth, this is a fill in the blank integer type question. A point alpha beta gamma lies on the plane. That means alpha plus beta plus gamma की वैल्यू कितनी है 2. A is this, तो K cross A equal to 0, then gamma equals. अल्फा बीटा गामा इस प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमने लिख दिया A is this and K cross A equal to 0, then gamma equals. अब हम इसको सॉल्व करते तो ये आएगा K डॉट A K माइनस K डॉट K A. We know all know K डॉट K is 1. So ये बचेगा सिर्फ माइनस A. K डॉट A. A का डॉट K के साथ करेंगे तो सिर्फ गामा बच जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा गामा K. अब गामा K और A है क्या, A is this माइनस अल्फा I माइनस बीटा J माइनस गामा K. ये कैंसिल हो जाएगा. इज इक्वल टू क्या है 0. सो हमारे पास आ गया अल्फा I प्लस बीटा J इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर इंडिविजुअली 0. दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 0. सो आपसे पूछा क्या है, देन गामा इक्वल्स. अगर अल्फा भी 0 है बीटा भी 0 है तो गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो वैल्यू, तो गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2. द आंसर टू दिस वन इज 2. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. A line L is perpendicular to this and passes through 0 1 0. एक लाइन है जो एक प्लेन line is perpendicular to this plane and passes through 0 1 0. अगर लाइन इसके परपेंडिकुलर है इसका मतलब उसकी नॉर्मल के अलॉन्ग है, तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गएंगे 1 2 2. देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स. ठीक है, तो हमने L का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन का L का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है. अब L जो है उसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो, डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट पता है, सो राइट डाउन 1 2 2. ठीक है, अब आपको बोला है L का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से निकालो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन वुड बी लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा. अब ये वाला पॉइंट जो है एनी पॉइंट, ये कब बनेगा, अगर ये और ये क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे तभी ना. तो इसके लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे यही, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 2. इनका डॉट क्या होना चाहिए 0 कर दो, डॉट 0. सो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच 0. तो यहां से कितना आ जाएगा 9 लैम्डा is equals to minus 2 lambda is equals to minus 2 by 9. Substitute. ये पॉइंट आ गया. अब आपको क्या बोला है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब निकाल लो डिस्टेंस. दिस इज दिस पॉइंट माइनस 2 by 9 5 by 9 minus 4 by 9. So you find out the distance and you get the answer. 4 plus 25 plus 16 बन जाएगा. अब उसको निकाल के दिखाओ कितना बन जाएगा. That would be the distance of this line from the origin. Let's move further and do the next question. Now consider the plane P1
P3 is a plane different from P1 and P2 which passes through the line of intersection. अभी हमने line of intersection की बात की थी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया line of intersection पे, चलो उस पे बेस्ड क्वेश्चन करें. एक प्लेन है this and P3 is a plane different from P1 and P2 which passes through the line of intersection. तो उसको हम लिख सकते हैं P1 plus lambda P2 या P2 plus lambda P1. तो लिख सकते हैं हम x plus z minus 1 x plus z minus 1 P2 plus lambda times y is equals to 0 is the equation of the plane P3. क्योंकि बोला है कि it is ये P3 की इक्वेशन है x plus lambda y plus z minus 1 equal to 0 is the equation of the plane P3 because it is said that it passes through the intersection of P1 and P2. Alright? If the distance of the point 0, 1, 0 from P3 is 1, distance मतलब perpendicular distance, 0, 1, 0 का perpendicular distance from P3, 0, 1, 0. So lambda minus 1 upon under root of 2 plus lambda square is equals to how much? 1. तो कितना आ जाएगा यहाँ से? Lambda minus 1 is equals to 1 plus lambda square under root squaring both sides. I will have lambda square plus 1 minus 2 lambda is equals to 1 plus lambda square. So I will have from here I will have hold on. This can't be 0. Let's hold on. I think I have made a mistake. 2 plus lambda square. That was 2 plus lambda square. 2 plus lambda square. I'm sorry, I made a mistake. So let's just solve it once again. So I will have lambda minus 1 whole square is equals to 2 plus lambda square. Solving, I will have lambda square plus 1 minus 2 lambda is equals to 2 plus lambda square. This lambda square and this lambda square goes. So I will have 2 lambda is equals to minus 1, lambda is equals to minus half. Okay, so the equation of the plane becomes x minus y by 2, that is minus half, plus z minus 1 equal to 0. So put करो यहाँ पे इसको solve करेंगे 2x minus y plus 2z minus 2 is equals to 0 is the equation of the plane P3. अब आगे क्या है? Distance of the point alpha beta gamma from P3 is 2. तो alpha beta gamma का distance P3 से 2 है तो वो निकल लो. 2 alpha minus beta plus 2 gamma minus 2 upon under root of 4 plus 1 plus 4. कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको? 2. तो you will have 2 alpha minus beta minus 2 gamma minus 2 mod is equals to what? 6. तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा तो 2 alpha minus beta minus 2 gamma minus 2 is equals to plus 6 और minus 6. अगर plus 6 रखा तो यहाँ पे आएगा 8. अगर minus 6 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा minus 4. तो देखते हैं which one is the correct option. तो minus 4 मतलब plus 4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास as you can see इन दोनों में ये चीज बिल्कुल सेम आ रही है 2 alpha minus beta plus 2 gamma. ठीक है, this is plus 2 gamma, this make it plus 2 gamma plus 2 gamma. तो 8 आ रहा है और minus 4 आ रहा है. So these two are the correct option to this particular question. All right, so next let's move further to the next one. So let's just take this question now. Now in R cube L be a straight line passing to the origin. Suppose that all this is points on L are at constant distance from the two planes this and this. Let M be the locus of the feet of perpendicular drawn from the point on L. There is this additional information missing. On L to P1. M be the locus of feet of perpendicular drawn from the point on L to P1. Then which of the following points lie
ऑन एम, लाई और लाइज ऑन एम। क्वेश्चन समझाती हूँ फिर आपको सारा लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। एल एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ओके। सपोज दैट ऑल पॉइंट्स ऑन एल आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स। एक लाइन एल है जो कि दो प्लेन से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टू प्लेन्स, ऐसे दो प्लेन्स है, एक ये जो लाइन एल है वो दोनों से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे है। जैसे कि ये है लाइन, हर पॉइंट जो लाइन एल पे है वो प्लेन से सेम डिस्टेंस पे है। ऐसा कब होता है? अगर ये प्लेन है तो इस हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे तब रहेगा जब लाइन इसके क्या होगी? पैरेलल हो गई। दोनों प्लेन के पैरेलल कैसे हो सकती है? ये दो प्लेन है, दोनों प्लेन के पैरेलल कोई एक लाइन कैसे हो सकती है? अगर वो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल हो। ये दो प्लेन है, ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों प्लेन के पैरेलल तभी होगी जब वो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या हो? पैरेलल हो। तो ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट एम बी द लोकस, ओके, लेट एम बी द लोकस ऑफ फीटर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन एल। एल से जो पॉइंट से हमने फीटर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पे? P1 पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन M। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसके लिए L की इक्वेशन निकालेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ L? बिकॉज L इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, L जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ? कैन आई राइट L के डायरेक्शन रेशियोज टू बी A B C, दैट मीन्स A plus 2B minus C is equals to 0 and also 2A minus B plus C is equals to 0 होगा. So this is how we can find out value of ABC. Are you understanding? Why? Because it is the line of intersection और हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल लाइन निकालनी है। इसका क्या मतलब होगा कि वो जो इसके नॉर्मल के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए अगर ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द line of intersection, line parallel to the line of intersection of the two planes, that means this will happen. तो ABC निकाले थे हम, कई बार कर चुके हैं। 2 minus 1, this is 1 2 minus 1 2 minus 1 1 1 2 minus 1 and 2 minus 1 1. So this would be, A would be 2 minus 1, B would be 1 plus 2 and C would be minus 1 minus 4. So it would be A minus 3B and minus 5. So 1 minus 3 and minus 5 are the direction ratios of this line. So let's just once again, let me do it once again. 2 minus 1 and then you have 1 minus of minus 2 plus 2 minus 3 and then you have 1 minus 4, that is minus 5. So these are the direction ratios of the line. So that means the equation of line would be x upon 1, y upon minus 3 and z upon minus 5. अब हमें बोला क्या गया है कि M be the locus of feet of perpendicular drawn from the point on L. So any point on L would be lambda minus 3 lambda minus 5 lambda. अब M एक feet of perpendicular, M is the locus of feet of perpendicular drawn from point L to P1. P1 से feet of perpendicular draw किया हुआ है, L से P1 पे feet of perpendicular ड्रॉ किया है। जैसे ये हमारे पास P1 है, what is the equation of P1? P1 is x plus 2y minus z plus 1 is equals to 0. L लाइन से, जो कि इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग पैरेलल है, feet of perpendicular, यहाँ पे हमने लाइन L से feet of perpendicular ड्रॉप किया हुआ है and M is the locus of the feet of perpendicular. तो हम एक any general point on L हमने सपोज किया क्या? लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा। सो अगर अब मैं यहाँ से फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी तो क्या आएगा? सो लेट्स जस्ट ड्रॉ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर का। कैसे निकालते हैं? x माइनस लैम्डा, y प्लस 3 लैम्डा, z प्लस 5 लैम्डा अपॉन 1 2 माइनस 1, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है 1 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ax1, तो पुट करो लैम्डा 3 2 जा minus 6 lambda and then you have plus 5 lambda plus 1 upon a square plus b square plus e square, that is 6. all right, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? सिर्फ 1/6
और यहाँ पे एक माइनस साइन भी बाहर होता है, तो -1/6। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा -1/6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3 -3 लैम्डा। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 -5 लैम्डा। अब हमारे पास एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बोला एम इज द लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू लैम्डा आई विल हैव द लोकस for different value of lambda. I will have the different locus. Let me write the point once again because I think that's not visible. Let me just rub this. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/6 प्लस लैम्डा x की वैल्यू, फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं हम, -1/6 प्लस लैम्डा, देन यू हैव -1/3 -3 लैम्डा, देन यू हैव 1/6 -5 लैम्डा। ठीक है, अब हमें देखना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल यू हैव दीज पॉइंट सेटिस्फाइंग। क्वेश्चन क्या है, m बी द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास m इन टर्म्स ऑफ एक नॉर्मल वैल्यू नहीं आई, लैम्डा की टर्म में आया है। तो बोल रहा है कि कौन से पॉइंट लाई करेंगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन m, कौन से पॉइंट m पे लाई करेंगे। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए देखते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। जैसे यहाँ पे x को 0 रखा हुआ है, तो ये 0 होने के लिए लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, +1/6। तो लैम्डा को अगर मैं 1/6 रखूं, देखो वो पॉइंट बनता है। सो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1/6 -1/3, और यहाँ आ जाएगा -3 + 3, लैम्डा 1/6 रखेंगे तो ये आ जाएगा -3/6, और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 -5/6। तो देखो वो पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। सो लेट्स सी, दिस इज 1/2, सो 6 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा -2 एंड दिस वुड बी -3 एंड दिस वुड बी -4/6। तो am I getting that point? Yes, I am. -5/6 and this is -2/3. So that means 0 for lambda equal to 1/6. This point is lying on M. Similarly, we find out the other points. Let's see this point -5/6, 0, 1/6. तो इसके लिए हमें किसको 0 रखना पड़ेगा, इसके लिए हमें बीच वाले को 0 रखना पड़ेगा। That is -1/3 -3 लैम्डा को 0 रखते हैं। So 3 lambda is equals to -1/3. So lambda is equals to how much, -1/9. So let's see for lambda is equals to -1/9 हमें क्या वो पॉइंट मिल रहा है, देखते हैं। तो ये बन जाएगा -1/9 -1/6, ये तो 0 ही हो जाएगा, एंड 1/6 +5/9. So let's just solve. This is 18 LCM -2, this would be -3, this would be 0, ये आ रहा है -5/18। तो पहला पॉइंट ही नहीं मैच कर रहा, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट नहीं बनेगा। इसको देखते हैं अगेन, इफ आई पुट द मिडिल वन टू बी 0, तो पॉइंट आ रहा है -1/3, देखो ये भी नहीं बन रहा, so this is also not matching. Similarly you have to see this point -1/6 -1/3 and 1/6. So if I want this to be -1/6 plus lambda, and then you have -1/6 plus lambda is equals to how much, -1/6. So lambda equal to 0. तो देखिए lambda equal to 0 के लिए क्या वो पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट बन रहा है -1/6 -1/3 and 1/6. Yes, for lambda equal to 0, this point is also lying on M. So A and B are lying on M, rest other points are not lying on this, on the locus of the feet of perpendicular, that is M. So this was how you supposed to do this question. सबसे पहले इसमें समझने वाली बात जो थी वो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। समझने वाली बात ये थी आपके लिए कि आपको जो पॉइंट लेना था उसको आपको जो लाइन लेनी है उसको ये समझना है कि वो दोनों प्लेन्स के पैरेलल हैं, पहली बात तो। अब दोनों प्लेन्स के पैरेलल कब बनेगी, जब वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगी, ठीक है। फिर आपको इक्वेशन निकालनी तो आती है, फिर फीट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी आता है कैसे निकालते हैं, बस आगे तो कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A line L passes through origin. A line L passing through the origin is perpendicular to these two lines. एक लाइन है जो ये दो गिवन लाइंस की क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों के, ठीक है।
तो लाइन L1 बनाते हैं, L1 लाइन की इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 4. So x minus 3 upon 1, y plus 1 upon 2 and z minus 4 also upon, ठीक है, 2. And then you have line L2, x minus 3, y minus 3, z minus 2. इन कार्टेशियन फॉर्म लिख रही हूँ मैं ताकि उससे ज़्यादा बेटर हो जाता है. 2, 2 and 1 and उसका कितना है 1, 2, 2 and this is 2, 2, 1. ठीक है, and that is 3, 1, 4, 3, 1 and 4 and this is 3, 3 and 2. All right, this is 3, 3 and 2 and that is okay. तो अब हमने पॉइंट लिख दिए. अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है एक लाइन है, देयर इज दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and is perpendicular to the lines. This line is passing through the origin. All right. Then the coordinates of the point on L2 at a distance of root 17 from the point of intersection of L1 and L. L1 और L का point of intersection ये है, तो हमें coordinates of the point निकालने हैं यहाँ पे जो कि root 17 के distance पे हो. किससे? From the point of intersection of L1 and L on L2 root 17 के distance पे हो. ठीक है, तो let's find out. अब एक काम करते हैं, पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं L1 और L का. सो हाउ वुड वी फाइंड आउट द पॉइंट, हाउ वुड वी फाइंड आउट दिस पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. नाउ अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इज परपेंडिकुलर. ओरिजिन से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं. नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस इज लेट्स से, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 4. क्योंकि हमें बोला गया है कि ओरिजिन से पास करती हुई लाइन जो है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है. तो ये परपेंडिकुलर कब होगी, लेट अस, ये है लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 4. ये परपेंडिकुलर तब होगी जब इनका क्या कर देंगे, हम डॉट जीरो कर देंगे. तो कर देते हैं, तो इसके लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 4 डायरेक्शन रेशियोज है और इसके 1 2 2 तो है ही है. तो लेट्स टेक द डॉट. सो लैम्डा प्लस 3 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 8. इसको जीरो करो, कितना 4 प्लस 4 प्लस 1 9 लैम्डा, 8 एंड 3 11 माइनस 2 कितना हो गया 9 वापस से, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1. सो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. 3 माइनस 1 इज 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 2 इज द पॉइंट. द पॉइंट इज 2 माइनस 3 2. सो ये हमारा पॉइंट आ गया 2 माइनस 3 2. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन L2 एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इससे आपको रूट 17 डिस्टेंस पे L2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि कौन से L2 लाइन पे एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 17. अब मुझे नहीं पता वो ये पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, L2 पे निकालने हैं ना, तो कोई मुश्किल बात नहीं है. एनी पॉइंट ऑन L2 वुड बी दिस. तो आ जाएगा 2 म्यू प्लस 3, 2 म्यू प्लस 3 म्यू प्लस 2. इससे इस पॉइंट का रूट 17 डिस्टेंस कर दो, कितना आ जाएगा 2 म्यू प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर्ड प्लस 2 म्यू प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 एंड म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच 17. तो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, दिस इज 2 म्यू प्लस 1 होल स्क्वायर्ड, दिस इज 2 म्यू प्लस 6 होल स्क्वायर्ड एंड दिस इज म्यू स्क्वायर. बस आपको म्यू के लिए वैल्यू सॉल्व कर देनी है, बात खत्म हो जाएगी. 4 म्यू स्क्वायर प्लस 1 4 म्यू, 4 म्यू स्क्वायर प्लस 36 6 टू द 12, 12 टू द 24 म्यू. तो कितना बन जाएगा 4 4 एंड 4 9 म्यू स्क्वायर आ जाएगा यहां से, प्लस दिस वुड बी 4 प्लस 28 एंड दिस वुड बी, ये कितना हो जाएगा 36 एंड 1 37 माइनस 17 20. सो 9 20 into 9 is 180, 10 and 8 आर द फैक्टर्स. तो बना दो 9 म्यू स्क्वायर प्लस 10 म्यू 10 and 18 सॉरी
18 म्यू प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हेयर आई विल हैव, देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, म्यू कॉमन 9 म्यू प्लस 10 और यहाँ से क्या 2 कॉमन 9 म्यू प्लस 10. सो म्यू इज इक्वल्स टू -2 एंड म्यू इज इक्वल्स टू -10/9. तो पहले म्यू की वैल्यू -2 अगर हम डालते हैं तो पॉइंट क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू -2 पुट करेंगे, अगर हम -2 पुट करते हैं तो आ जाएगा पॉइंट, लेट्स पुट म्यू टू बी -2. ऑल राइट, -4 + 3 एंड देन -4 + 3 एंड 0. सो ये बन जाएगा -1 -1 0. तो एक तो पॉइंट ये आ गया -1 -1 0. राइट. दूसरा पॉइंट कब आएगा, जब आप म्यू की वैल्यू -10/9 सब्स्टिट्यूट करोगे. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग यू विल हैव द अनदर वैल्यू, एक और पॉइंट आ जाएगा आपके पास. सो देयर विल बी 2 आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को करना क्या था. कंसिडर द प्लेन्स. अगेन दिस इज अ सर्शन रीजन. Consider the planes this and this. The parametric equation of the line of intersection of the plane are this. The vector is give parallel to. अब आपको क्या निकालना है, दो प्लेन्स दिए हुए हैं 3x -6y -2z इज इक्वल्स टू 15. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. 2x + y -2z इज इक्वल्स टू 5. आपको इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है. सिंपल है. लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन कैसे निकलेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज अलोंग द लाइन और कोई भी एक पॉइंट. तो कोई भी एक पॉइंट निकालने के लिए एक काम करते हैं हम, किसी को 0, इसको किसी को भी एक को 0 रख दो. टेक एनी वन ऑफ देम एज 0. कोई भी x को रख दो, y को z रख दो, z को 0 रख दो, किसी को भी 0 रख दो. इफ आई टेक दिस टू बी 0 तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, इफ आई टेक एनी वन ऑफ देम टू बी 0, लेट मी टेक एनी वन ऑफ देम टू बी 0. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो निकालती हूँ, फिर 0 लगाएंगे. तो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दैट मीन्स दोनों प्लेन्स में लाई कर रही है. तो आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज. अब दोनों प्लेन्स के पे लाई कर रही है, इसका मतलब दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल है उसके क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए. सो नॉर्मल टू 1 वुड बी, तो इसका मतलब आपके पास 3 -6 -2 का क्या लेना पड़ेगा, कई बार हम कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी. और 2 1 -2 का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस. 3 -6 -2 एंड 2 1 -2 का क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 + 2 -6 + 4 3 + 12. तो हमारे पास जो वेक्टर आ गया वो आ जाएगा 14i + 2j + 15k. So the vector along the line of intersection is, vector along the line of intersection of the given plane is 14i + 2j + 15k. तो vector is parallel to the given plane. अभी मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर along the line of intersection ये है. तो इट्स, आपने अभी किया था ना कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल कोई लाइन होगी तभी वो दोनों प्लेन के पैरेलल हो. तो हम बोल सकते हैं ना, द वेक्टर इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन्स. यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. द वेक्टर इज दिस इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन्स. ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग लाई कर रहा है तो इसलिए वो दोनों प्लेन्स के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ समझा था. अब बची पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. अब मेरे को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग वेक्टर तो पता ही है, एक पॉइंट चाहिए और मेरा काम बन जाएगा. तो पॉइंट निकालने के लिए आप किसी को भी 0 रख लेते हैं. सो लेट्स टेक एनी वन ऑफ देम एज 0. सो z को 0 रख दिया अगर मैंने, तो बन जाएगा 3x -6y इज इक्वल्स टू 15 और 2x + y इज इक्वल्स टू 5 इक्वेशन बन जाएगी. z को 0 पुट कर दो, अपनी मर्जी से पुट कर दो. तो यहाँ से आ जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x - 2y इज इक्वल्स टू 5. राइट. अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 4 और ये बन जाएगा 10. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट. कितना बन जाएगा, -5y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू -1. पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. सो आई विल हैव 3x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 3. तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 -1 0. सो द पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, दोनों प्लेन्स पे लाई करता हुआ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट दोनों प्लेन्स पे लाई कर रहा है सो बेसिकली उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है. हमें वेक्टर अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पता है, हमें पॉइंट पता है, तो निकाल लेते हैं. आ जाएगी x - 3 y + 1
z अपॉन 14 to 15, इसको आप इन द पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो 14t plus 3. You can also write it in the parametric form. आपके पास in the parametric form आ जाएगी 14t plus 3, 2t minus 1 and 15t. So 2t थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, that may be because of, एक मिनट, let me just check once again, x minus 3, y plus 1 and z. So that may be that means this is not the correct statement. Why? क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म जो हमारी आ रही है वो आ रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 14t plus 3, 2t minus 1 and 15t. And I am not hoping I have done any mistakes. पॉइंट निकाला, 3 minus 1 0 आया, तो 3 1 और 0 और 14 to 15 तो हमारा बिल्कुल ठीक आ ही रहा था क्योंकि हमने उसके लॉन्ग वेक्टर भी निकाला है. सो ये पैरामीट्रिक फॉर्म बन रही है और ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट while statement 2 is the correct statement to this particular question. And thereby we end up this session of 3D, and I have given you all the questions that have been there in advanced from past 10 years. Thank you so much.